हेलो स्टूडेंट्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को जाने बिना आप स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड किसी भी तरीके का कोई भी कंप्यूटेशन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एवरी स्टैटिस्टिकल सीरीज हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और जब आपसे ये पहचानते बनता है कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो किस सीरीज़ के अंडर में आता है, तभी हम उसमें फॉर्मूले लगा पाएंगे, बिकॉज एवरी सीरीज हैज़ इट्स ओन फॉर्मूले। ओके, तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो सीरीज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। So first of all, there are three kinds of series: individual series, discrete series, and continuous series. And the second name of continuous series is grouped series also. Okay. Now, first we will talk about the individual series. Okay. तो इंडिविजुअल सीरीज का जो सम होता है या जो क्वेश्चन होता है उसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं। ओके, under the individual series you will have n and x. Now what is n here? N will be the serial number or roll number, and x will be any item. Suppose here I am taking marks. Okay, now in the individual series you will find only both things, or sometimes you will find only x. Okay, n will not be there sometimes. So if the question is in this form where n and x are given, n is given in the form of serial number and x is given in the form of suppose marks. ठीक है, suppose I am taking the marks out of 50 here. Okay, so if we will talk about the individual series, here the serial number 1 2 3 4 5 is given. So the 1 2 3 4 5, each number is the individual number. Okay, and if the serial number or the roll number 1 have got 22 marks in any subject, means the 22 marks is the individual marks of roll number 1. Okay, in any subject. Similarly, if we will talk about roll number 2, so he or she have got 25 marks out of 50. So the 25 marks are the individual marks of roll number 2, and so on. So we can say in individual series n and x both are in individual form. Okay, next, discrete series. Under the discrete series you will have f. F means frequency. Okay, now in the previous slide we discussed about the individual series where n and x were there, and in this discrete series you are having x and f. Now x is the same means कि वहाँ पे भी जो हमारा x था वो मार्क्स के फॉर्म में था और यहाँ पे भी x हमारा मार्क्स के फॉर्म में है, बट जो n था, n ने अपना साइड चेंज किया है. साइड चेंज किया है मीन्स कि इन द प्रीवियस स्लाइड इट वाज इन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड नाउ इन द डिस्क्रीट सीरीज इट इज इन द right hand side in the form of f, frequency. Okay, so frequency f, suppose we are having here number of students. Now what is the difference between the individual and discrete? You will see here. So the first characteristic of discrete series is कि इसमें जो x होते हैं उसमें normally, I am saying the word normally, generally. Okay, नॉर्मली उसमें जो डिफरेंस होता है इन ईच एक्स विल बी सेम. ओके, तो
यहाँ पे हमने जो x लिए हैं, सपोज कि हमने एक क्लास टेस्ट लिया और उसमें हमने आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हैं, ठीक है, और हमने उनको कैटेगराइज किया है 2, 4, 6, 8 एंड 10 में. नाउ अंडर द f you will see number of students. Suppose कि if we are talking about the 2 marks, so 2 marks have got by 4 students. ओके, मतलब कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि 2 मार्क्स मिले हैं, देन 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि 4 मार्क्स मिले हैं, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि 6 मार्क्स मिले हैं, और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि 8 मार्क्स मिले हैं, एंड 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि 10 मार्क्स मिले हैं. सो यू कैन सी हेयर कि इन x द डिफरेंस इन एवरी x इज सेम, बट f इज इन रैंडम फॉर्म. ठीक है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं 2 मार्क्स की, तो 2 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट्स यहाँ हमको दिख रहे हैं. 6 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं तो 6 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो हमें मेनली ये याद रखना है कि जब डिस्क्रीट सीरीज़ की हम बात करते हैं तो वहाँ हमें x मिलता है और f मिलता है. अब जो हमारा x है वो मार्क्स के फॉर्म में या सैलरी के फॉर्म में या वेजेस के फॉर्म में या स्कॉलरशिप के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, एनी आइटम. और f जो होंगे वो नॉर्मली क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ लेबरर्स, लाइक दैट. ओके, नाउ continuous or grouped series. Okay, so the continuous series is totally changed here. Okay, because in continuous series you will have class intervals or class. Okay, and this class we can say the x class. X series is given in the form of class, and as in discrete series you had f, so you will have f again in continuous series. ओके, तो क्लास का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड एक्स इन द फॉर्म ऑफ सपोज मार्क्स. ओके, सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्क्स फ्रॉम 0 to 10. ओके, और वी कैन से 0 to 9.99. ओके, तो किसी को हो सकता है 1 मिला हो, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5, कुछ भी मिल सकता है. तो सपोज कि 0 से 10 की रेंज में आने वाले स्टूडेंट्स हैं 4. ओके, फिर नेक्स्ट क्लास है 10 to 20, मीन्स 10 to 99.99. वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज 20 हमारा नेक्स्ट वाले क्लास में भी आ रहा है. ओके, सो हेयर वी विल टेक द 10 to 19.999. ओके, तो 10 से लेके 20 मार्क्स, किसी को हो सकता है 11, किसी को 12, 14, 19, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कितने, 5. ठीक है, एंड सो ऑन. तो हम ये देखते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज में हमें क्या मिलता है, क्लास मिलती है और f मिलता है. क्लास जो कि x के फॉर्म में होती है और f जो कि फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारा n के फॉर्म में ही होता है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो क्लास है और जो f है दोनों ग्रुप में है. ठीक है, अगर हम क्लास की बात कर रहे हैं तो मार्क्स भी क्या है, ग्रुप में है, बिकॉज हेयर वी हैव द ग्रुप ऑफ मार्क्स एंड f ऑल्सो इज इन ग्रुप. ठीक है, means here we are talking about not only one student, we are talking about group of student. Okay, so in conclusion we can say कि in individual series n and x both are in individual form. ठीक है, मतलब x भी अपनी से एक डिफरेंट और सेपरेट आइडेंटिटी लिया होता है और x भी. ठीक है, अंडर द डिस्क्रीट सीरीज x is an individual form but f is in grouped form, which means कि x तो वहाँ पे separate था, individual था, 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन यहाँ पे जो f है वो हमारे group form में हो जाते हैं because there we have the number of students. ठीक है, and continuous series f and x both are in the grouped form. ठीक है, because there the class was there, so
क्लास में हमारे जो मार्क्स थे वो एक ग्रुप में थे और F नंबर ऑफ स्टूडेंट भी एक ग्रुप में ही था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जाने बिना हम सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिक्स की कोई भी मेथड इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि द क्वेश्चन इज गिवन इन विच सीरीज, ठीक है, बिकॉज ईच सीरीज हैज देयर सेपरेट फॉर्मूले, ओके। सो इन टोटल वी कैन से कि हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि सीरीज़ कौन सी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तब जाके हम उसमें सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्शन या स्टैटिस्टिक्स की कोई भी मेथड लगा पाएंगे। मीन्स हम मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, रेंज, SD, MD, QD कुछ भी सॉल्व कर पाएंगे इफ़ यू विल हैव द बेटर नॉलेज अबाउट द सीरीज़, ओके। क्योंकि हर सीरीज़ के अपने फॉर्मूले होते हैं, हर सीरीज़ को उसके पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके हिसाब से ही डील करना होता है। तो अगर आपको आज के इस सीरीज़ के क्लास में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।